A very good morning to all of you. Welcome you all in class 12 economics. So as you already know that we have completed whole syllabus of economics, that is macroeconomics and the Indian economic development. So from the previous few classes we have started to solve the question papers. Okay. So we have discussed the several years question paper. That first of all we have discussed the CBSE sample paper which is issued by the CBSE in October 2020. Next we have discussed CBSE examination paper of 2020, all India different sets we have discussed. Next we have started to solve the CBSE examination paper 2019. So we have already discussed the Delhi set, all India different sets, set A, set B, set C, etc. And next we have started to solve the previous year questions. Okay, so different years question we have already discussed, different years question related to the macroeconomics, because before 2020 the Indian economic development were in class 11 and microeconomics were in the class 12. So we are not going to discuss the questions of the microeconomics. That's why we have discussed the macroeconomics questions. Okay, so we have discussed several types of questions of the different years, but after that we have started to again and again study those chapters in which students are facing basically all the problems. So where will be the AD, AS and determination point, etc. So in today's class also we are going to discuss the foreign exchange rate. Okay, so in today's class we will discuss all these some points of the foreign exchange rate. Okay, so let's get started. Okay, so in today's class first of all we will discuss the what is foreign exchange and the foreign exchange rate, right? तो अभी पहले डिस्कस करते हैं what is foreign exchange. Foreign exchange and foreign exchange rate. Foreign exchange rate, right? So foreign exchange simply we discuss with the foreign currencies, foreign bonds, foreign government securities of the government as well as the foreign corporates. Okay, here we will discuss only about the foreign countries. Not we included the domestic country or domestic currency. हम लोग फॉरेन एक्सचेंज में किसकी बात करेंगे? बस फॉरेन के जो भी करेंसी है, फॉरेन के जो भी सिक्योरिटीज़ हैं, बॉन्ड्स हैं, फॉरेन के कॉरपोरेट के या फॉरेन गवर्नमेंट के जो भी डिफरेंट आपकी करेंसीज़ हैं, बॉन्ड्स हैं, उनकी बस बात करते हैं. फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज रेट में हम किसकी बात करते हैं? बात करते हैं रेट एट विच the one country's currency is exchanged into the another country's currency. मीन्स किस रेट से जो कंट्री की करेंसी है वो एक्सचेंज हो रही है, वेदर $1 इक्वल टू 70, $1 इक्वल टू 80, तो $1.70 होगा या $1.80 होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉरेन एक्सचेंज रेट. सो द रेट एट विच the one country's currency is exchanged into another country's currency. So this is called the foreign exchange rate. So foreign exchange में हमने क्या लिया? बस फॉरेन की करेंसी सिक्योरिटीज़ की बात की, और जिस रेट पे कोई भी कंट्री की करेंसी दूसरी कंट्री की करेंसी में क्या हो रही है? एक्सचेंज हो रही है, उसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट. फॉर एग्जाम्पल $1 इक्वल टू ₹60. So this one is the example of your फॉरेन एक्सचेंज रेट, राइट? तो फॉरेन एक्सचेंज रेट हमने डिस्कस कर लिया, समझ लिया कि हाँ क्या होता है. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं दैट इज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रेट. मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन कैसे होता है, कहाँ पे, किस रेट पे. जैसे कि अगर ये $1 है, हम बात करते हैं $1 ₹70 के इक्वल होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? या ये किसकी हेल्प से हम बोलेंगे कि नहीं $1 इक्वल टू 70 ही होना है, या $1 ₹80 है, या $1 की बात हम लोग करते हैं तो ₹50 है, ये कौन डिटरमाइन करेगा? सो फॉर दिस वी हैव टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा हमारा?
types of the foreign exchange rate system. Types of foreign exchange rate सिस्टम. ओके, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको इसके 3 टाइप्स हैं. 3 टाइप्स को हम लोग 1 बाय 1 क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. राइट, तो पहला क्या हो गया आपका, दैट इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम. फिक्स्ड एक्सचेंज रेट system. Next one is flexible exchange rate system. Flexible exchange rate system. Okay, flexible exchange rate system को हम लोग floating exchange rate system भी कहते हैं, और floating exchange rate system. Okay, next है आपका, that is third है आपका managed floating exchange rate. राइट, तो ये 4 हो गया आपका फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, सॉरी 3 flexible exchange rate system, और it is also called the floating exchange rate system. नेक्स्ट है आपका managed floating exchange rate system. ठीक है, अब इनको क्या है 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं. देखिए, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या होगा, ये भी जो भी रेट होगा, मतलब कि $1.50 है, $1.80 है, so it is determined by the government only. Okay, so it will determined by the गवर्नमेंट ओनली. गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगी कि $1.50 होगा या $1.60 होगा. ठीक, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम की जब हम बात करते हैं, तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है. तो इसमें जो भी एक्सचेंज रेट होगा, इट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस. ये सारे टॉपिक्स हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस कर लिए हैं, कोई नया नहीं है ये सब. ठीक है, सो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या हो गया, और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, द एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस. मार्केट फोर्सेस की हेल्प से ही रेट डिटरमाइन होता है, और मार्केट फोर्सेस में क्या क्या होते हैं, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई. डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड करते हैं कि $1.50 होगा या $1.60 होगा. राइट, नेक्स्ट है आपका मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम. Managed floating exchange rate system, it is also called the hybrid or the dirty floating, as well as it is the combination of fixed and flexible exchange rate system. Flexible exchange rate सिस्टम, मतलब जो मैनेज्ड फ्लोटिंग होता है, ये क्या होता है, इसमें बेसिकली हम देखते हैं कि ये कॉम्बिनेशन होता है किसका, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम का. कैसे, बिकॉज अगर सबसे पहले इसमें क्या होता है कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम की तरह, मतलब कि पहले जो भी रेट होगा वो डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड करते हैं कि हाँ ये रेट इतना होगा, $1.80 होगा, $1.50 होगा, $1.60 होगा. बट उनके हेल्प से, मतलब विद दी हेल्प ऑफ मार्केट फोर्सेस, जब वो रेट डिटरमाइन नहीं हो पाता, डिटर्मिनेशन नहीं हो पाता, इन दैट केस देयर इज इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट. ओके, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है, और गवर्नमेंट के थ्रू कौन इन सारे एक्सचेंज को क्या करता है, इसको किसको कस्टोडियन बोला जाता है, किसको एक एज अ गार्डियन बोला जाता है, बेसिकली दी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. सेंट्रल बैंक क्या है, इन सारी चीजों को क्या करता है, कंट्रोल करता है. सो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिड सिस्टम भी बोलते हैं. तो मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द
फिक्स्ड एंड दी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, बिकॉज इसमें जो भी डिटर्मिनेशन होता है वो फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल दोनों के हेल्प से ही होता है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में मतलब जो भी रेट है वो कौन डिटरमाइन करता है, जितने भी सारे आपके मार्केट फोर्सेस हैं, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम को कौन डिटरमाइन करता है, इट इज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट ओनली। Appreciation of domestic currency, ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी, और अगर इसको हम लोग बोलते हैं एप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी, फॉरेन करेंसी। अगर हमारा जो डोमेस्टिक करेंसी की जो एक्सचेंज रेट है वो अगर डेप्रिशिएट हो रहा है, दैट मीन्स कि जो अगर ऑपोजिट कंट्री है जिसके साथ हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसका क्या हो जाएगा, करेंसी एप्रिशिएट कर जाएगा, मतलब उसके लिए हमारी करेंसी फॉल है और हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सचेंज रेट हमारा क्या हो जा रहा है, राइज हो जा रहा है। कैसे हो जा रहा होगा, लिटिल बिट आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, बट नो नीड टू वरी, अभी जब हम डायग्राम और ये सब के साथ पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। तो एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी, ठीक है। अब कह रहा है depreciation of the currency refers to the decrease in the value of the domestic currency in terms of the foreign currency। मतलब अगर depreciation हो रहा है करेंसी का, इसका मतलब हो जाएगा कि जो डोमेस्टिक करेंसी है वो क्या कर जा रही है, फॉल कर जा रही है इन टर्म्स ऑफ द फॉरेन करेंसी। एज आई ऑलरेडी टोल्ड टू यू ऑल कि हम जब भी अपनी करेंसी का, हमारी करेंसी की जो वैल्यू है, मतलब हमारी करेंसी की जो वैल्यू ऑफ मनी जिसकी बात करते हैं, जो परचेजिंग पावर होता है, वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है कि हमारी कंट्री की करेंसी हम किसी और कंट्री की करेंसी को हम अपने टर्म्स में क्या करें, उसको डिटरमाइन करें। इसलिए हम क्या करते हैं, कोई ऐसी कंट्री जो डेवलप्ड है, जो एफ्लुएंट है, जिसके पास इतने कैपेबल है, उसकी कंट्री की जो वैल्यू ऑफ मनी है वो क्या है, बहुत अच्छी है, तो हम उसी के कंटेक्स्ट में क्या करते हैं, अपने एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी और द एप्रिसिएशन ऑफ द फॉरेन करेंसी का मतलब होता है कि डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द, अगर हम लोग बात करते हैं डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ द फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी के टर्म्स में हमारी जो करेंसी है, डोमेस्टिक करेंसी है, वो क्या कर जा रही है, फॉल कर जा रही है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। इट अकर्स व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द डोमेस्टिक प्राइस, डोमेस्टिक करेंसी प्राइस। ये क्यों होता है, इसके पीछे रीजन है कि जो भी डोमेस्टिक करेंसी है उसकी प्राइस में क्या हो गया, वो इंक्रीज कर गई है, मतलब एक्सचेंज रेट टू बाय अ फॉरेन करेंसी, मतलब एक फॉरेन करेंसी को बाय करने के लिए हमारी जो कंट्री की करेंसी की जो प्राइस है वो क्या कर गई है, राइज कर गई है। मतलब पहले अगर हमको $1 का मतलब अमेरिका से कुछ गुड्स को लेना था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, हम फॉरेन ट्रेड की बात ही कर रहे हैं इसमें, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज हो रहा है, तो पहले हम $1 अगर उनसे $1 का सामान ले रहे थे, गुड्स ले रहे थे, तो हमें क्या था कि 60 रुपीज और 70 रुपीज ही देना पड़ा था। हम अपना 70 रुपीज देते थे तो उनका $1 का हमें गुड्स मिल जाता था। बट नाउ ड्यू टू डेप्रिसिएशन वी हैव टू पे 80 रुपीज इंस्टेड ऑफ 70। अब हमें क्या करना पड़ा है कि जो हम पहले $1 में 70 रुपीज का क्या कर रहे थे, गुड्स ले रहे थे, अब क्या करना पड़ रहा है कि अब हमें $1 में 80 रुपीज पे करना पड़ रहा है। 80 रुपीज पे करना पड़ा है, तब हमें वही दैट गुड हम अपनी कंट्री में मंगा पा रहे हैं। नहीं तो अब क्या हो जाएगा, हम अगर नहीं कैपेबल है, हम नहीं पे कर सकते, तो
वी कांट डू एनी काइंड ऑफ ट्रेड, हम ट्रेड भी नहीं कर सकते हैं। इस कंडीशन पे क्या है, ये इसको हम लोग बोलते हैं डोमेस्टिक करेंसी का क्या हो रहा है, डिप्रिसिएशन हो रहा है। डिप्रिसिएशन मतलब कि एक्सचेंज रेट क्या हो जा रही है, फॉल कर जा रही है, बट जो वैल्यू है मनी की जो वैल्यू है वो क्या हो जा रही है, मनी की जो वैल्यू है वो क्या कर जा रही है, राइज कर जा रही है। ठीक है, पहले हमें $1 में 70 रुपीज देना पड़ा था, अब $1 में हमें 80 रुपीज देना पड़ रहा है। ठीक है, तो अगर हमको फॉरेन करेंसी का 1 यूनिट बाय करना है तो पहले के कंपैरेटिवली अब हमें हायर प्राइस को पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये होता है आपका डेप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी और द अप्रिसिएशन ऑफ द फॉरेन करेंसी। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल दे रहा है, इफ प्राइस ऑफ द $1 राइजेस फ्रॉम 60 to 70। ठीक है, कि अब जो प्राइस है $1 का जो प्राइस है, $1 का जो प्राइस है पहले 60 रुपीज था, अब वो $1 का प्राइस क्या हो गया है, 70 रुपीज हो गया है। सो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड दी depreciation of domestic करेंसी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि डेप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। की डोमेस्टिक करेंसी का क्या हो रहा है, डेप्रिसिएशन हो रहा है। राइट, ठीक है, तो डेप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी किसको बोलेंगे कि जब जो हमारी करेंसी की जो वैल्यू है वो क्या कर जा रही है, फॉल कर जा रही है। मतलब जो हमारी जो पहले हमें 160 रुपीज में ही वो कोई गुड्स मिल जा रहा था 1 यूनिट, अब हमें क्या करना पड़ रहा है, हमें 70 रुपीज पे करना पड़ रहा है। इन दैट सिचुएशन वी हैव टू पे मोर 10 रुपीज, हमें अब 10 रुपया ज्यादा पे करना पड़ रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी एंड द एप्रिसिएशन ऑफ द फॉरेन करेंसी। ठीक है, एप्रिसिएशन ऑफ द फॉरेन करेंसी इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट लाइन है, अ राइज इन द एक्सचेंज रेट इंप्लाइज डेप्रिसिएशन ऑफ द इंडियन रूपी। कि जब एक्सचेंज रेट राइज कर जा रहा है, मतलब $1.60 था, $1.70 हो रहा है, मतलब ये जो रेट है वो क्या कर जा रहा है, राइज कर जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन ऑफ द इंडियन रूपी। इंडियन रूपी की जो वैल्यू है वो क्या कर गई है, कम हो गई है। हमें वही सामान, वही गुड्स पहले 60 रुपीज में देना पड़ा। हम कोई मार्केट में जाते हैं, अगर हम लोग इंटरनल ट्रेड की बात करते हैं विद इन द कंट्री, तो हम पहले अगर यही चौक हमें सिंपली अगर हमें पहले 10 रुपीज पे करना पड़ रहा था, अब हमें यही चौक को परचेज करने के लिए 20 रुपीज पे करना पड़ रहा है। तो हमारा जो मनी की जो पावर है, जो वैल्यू है वो क्या कर गई है, फॉल कर गई है। अब हमें इसी के लिए ज्यादा पे करना पड़ रहा है। यही कंटेक्स्ट हम लोग, यही चीज हम लोग फॉरेन कंट्री के साथ भी पढ़ते हैं कि पहले हमें ये $1 का मिल रहा था, $1 उनके यहाँ का $1, हमें इसका 50 रुपीज पे करना पड़ा था और 60 रुपीज पे करना पड़ा था। अब क्या हो गया, जैसे ही डेप्रिसिएशन हो गया डोमेस्टिक करेंसी का, इसी चौक की जो वैल्यू है, पहले आपकी $1 हमको 70 पे करना पड़ा था, अब हमको 70 की जगह 80 रुपीज पे करना पड़ रहा है। तो इससे क्या हो गया कि फॉल हो गया। फॉल होने के साथ ही साथ क्या है कि हमें अब इसी के लिए ज्यादा पे करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या रहा है, अ कॉजेस फॉर द राइज इन एक्सचेंज रेट। ये जो एक्सचेंज रेट राइज कर रहा है, $1 इक्वल टू 60 रुपीज, नाउ $1 इक्वल टू 70 रुपीज, इसके पीछे कॉजेस क्या है, किसकी वजह से ये इंक्रीज कर रहा है। तो इसके पीछे 2 कॉज है। कॉजेस फॉर इंक्रीज इन एक्सचेंज रेट। Causes for increase in exchange rate।
इसका पहला कॉज है इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, फॉर फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, नेक्स्ट इसका है डिक्रीज इन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ऑल कि ये जो इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, ये जो एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन हो रहा है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। कि फॉरेन एक्सचेंज की जो डिमांड है और जो सप्लाई है उसके चेंज होने की वजह से ही एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन हो रहा है। तो जब हम बात करते हैं कि इंक्रीज इन एक्सचेंज रेट, कि ये जो एक्सचेंज रेट है वो इंक्रीज हो रहा है, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कॉजेज है इसके पीछे आपका इंक्रीज इन डिमांड। डिमांड किसकी इंक्रीज हो जा रही है? जो फॉरेन एक्सचेंज है उसकी डिमांड क्या हो जा रही है? इंक्रीज हो जा रही है। और जो उसकी सप्लाई है, मतलब हम पहले क्या था, लोग कम डिमांड कर रहे थे, बट अब डिमांड क्या हो गई है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कि इंडिया में हमको अगर यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हमें ये चौक हमारे कंट्री में आता है, ठीक है, ये चौक जब हमारी कंट्री में आता है, अभी क्या हुआ कि इंडिया में बहुत सारे स्कूल्स ओपन हो गए, बहुत सारे इंडिया में सीबीएसई से लेके आईसीएसई, यूपी स्टेट बोर्ड्स के स्कूल ओपन हो गए। तो अब इसकी डिमांड क्या हो जाएगी? चौक की इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि लोगों को क्या है, चौक की जरूरत होती है स्कूल में ना। तो अब इसकी क्या है, डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है। और आता ये कहाँ से है? यूएस से आ रहा है। और अब जब एक रैंडमली किसी की डिमांड क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सप्लाई क्या हो, बहुत ज्यादा हो। तो उस कंडीशन में इंक्रीज इन डिमांड इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गई और सप्लाई इतनी ज्यादा नहीं हो पा रही है। तो डिमांड इंक्रीज हो गई और सप्लाई क्या हो गई है, वो बहुत कम हो गई है। जैसे ही सप्लाई क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, तो क्या होगा, अल्टीमेटली डेप्रिसिएशन हो जाएगा। मतलब पहले हम यही चौक $1.70 का ले रहे थे, अब अमेरिका क्या बोल रहा है कि नहीं, अब ये चौक का क्या है कि इसको क्या करना पड़ेगा, इसी के पीछे क्या है कि हमको $1, अब इसी चौक का $80 देना पड़ रहा है। तो अल्टीमेटली क्या हो जा रहा है, इस दोनों की वजह से, डिमांड इंक्रीज होने की वजह से फॉरेन एक्सचेंज की, जो फॉरेन एक्सचेंज हम कर रहे हैं, और उसकी सप्लाई सप्लाई की डिक्रीज होने की वजह से हमारी कंट्री में क्या हो जा रहा है, हमारी करेंसी का क्या हो जा रहा है, डेप्रिसिएशन हो जा रहा है। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपको आई थिंक सो समझ में आया होगा कि कैसे ये डिमांड और सप्लाई क्या कर रहा है, उस पर इम्पैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, वन बाय वन इसको सबसे पहला करते हैं हम लोग, इंक्रीज इन डिमांड फॉर द फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, इंक्रीज इन डिमांड फॉर द फॉरेन एक्सचेंज को हम लोग एक डायग्राम के साथ भी पढ़ेंगे, डायग्राम के साथ इसको पूरा इलाबोरेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, इक्विलिब्रियम की कंडीशन बनाएंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज का रेट कहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे क्वांटिटी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिमांड एंड सप्लाई को इंटरसेक्ट करके वहां पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन बनाते हैं। ठीक है, ये आपका अगर एम ले लेते हैं हम लोग, OMOR, एक्स रेट है तो हम लोग आर से इसको डिनोट करें, ये पॉइंट हो गया आपका इक्विलिब्रियम का। अब कह रहा है, सबसे पहले हम इंक्रीज इन डिमांड पढ़ रहे हैं, ये आपका डिमांड कर, ये आपका सप्लाई कर। कह रहा है कि इंक्रीज इन डिमांड और फॉर द फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज के लिए फॉरेन डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो जैसे ही इंक्रीज इन डिमांड, द कर्व विल शिफ्ट टू द राइटवर्ड। कर्व हमारा क्या होगा, ये राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। राइट, अब
अब देखिए यहाँ पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन भी, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन भी क्या हो गई, चेंज हो गई है। अब हमें यहाँ पे इक्विलिब्रियम मिल रहा है, दिस पॉइंट E1, राइट। E पॉइंट से अब इक्विलिब्रियम क्या हो गया है, शिफ्ट हो गया, दैट इज E1। अब इसके शिफ्ट होने से क्वांटिटी भी क्या हो गई है, शिफ्ट हो गई है OM1, ठीक। और डिमांड जो रेट है फॉरेन एक्सचेंज का, जो OR था, इट इज इंक्रीजेस अप टू R1, ठीक है। अब इस सिचुएशन पे देखिए हमने क्या क्या देखा, हमने इसको एक्सप्लेन करने का बेस्ट मेथड है, आप पहले लिया करो कि ऑन द एक्स एक्सिस वी हैव टेकन द क्वांटिटी ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, ऑन द वाई एक्सिस वी हैव टेकन द रेट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। जहां पे क्या आ रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल मेक अ equilibrium point where the demand and supply intersect to each other, and when the exchange rate rises, so the when there is increase in the demand, when there is increase in demand, जब क्या हो रहा है, डिमांड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, so the curve will shift to the rightward, कर्व हमारा क्या होगा, rightward शिफ्ट होगा, so the new equilibrium is found, new equilibrium point is found, so equilibrium is shifted from E to E1, E to E1 क्या हुआ, शिफ्ट हुआ है, and due to shifting in the equilibrium point, the rate of the foreign exchange is also increases from the OR to OR1, OR से वो OR1 को इंक्रीज हुआ, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी क्या हो गई है, जो क्वांटिटी है, देखिए ये भी सिचुएशन हम ये नहीं कहते कि डिसइक्विलिब्रियम की है, इक्विलिब्रियम की है, क्योंकि जहां पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट मींस दैट पॉइंट इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो डिमांड पहला हम देखेंगे D से D1 शिफ्ट हुआ, नेक्स्ट E से E1 हो गया इक्विलिब्रियम, और रेट भी OR से OR1 हो गया, एंड दिस सिचुएशन इज कॉल्ड द डेप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी, बिकॉज जैसे ही इंक्रीज इन डिमांड हुआ, देखिए एकदम सिंपल सा है, जैसे ही इंक्रीज इन डिमांड हुआ, रेट अपने आप इंक्रीज कर गया, OR से OR1 हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, इंक्रीज इन डिमांड फॉर द फॉरेन एक्सचेंज। आई थिंक सो ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, डिक्रीज इन दी सप्लाई, सप्लाई में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, की सप्लाई में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सेम प्रोसेस हम करेंगे, रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड द क्वांटिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ अ न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट न्यू, नॉट न्यू, इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाएंगे E R M, ठीक है। दिस इज D, दिस इज S, राइट। कह रहा है डिक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई में क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, तो जैसे ही सप्लाई में डिक्रीज होगा, देन द कर्व विल शिफ्ट टू दी, कर्व विल शिफ्ट टू दी लेफ्टवर्ड, कर्व क्या होगा, वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। S से S2 मान लेते हैं हम लोग इसको, S2 M2, जैसे इक्विलिब्रियम जब कर्व हुआ हमारा S से S2 हुआ, तो न्यू इक्विलिब्रियम बना हमारा, दिस O से OR1, M से M2, ठीक है। अब देखिए इसको डायग्राम को एक्सप्लेन करते हैं, सेम थिंग वही हुआ है, हम लोग कुछ भी नहीं किए हैं। यहां पे क्या बोलेंगे कि जैसे ही E से E2, जैसे ही एक्सचेंज रेट राइज हो रहा है, एक्सचेंज रेट राइज होने की जो मीन्स प्रॉब्लम क्या है, ओनली बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन सप्लाई, जैसे ही सप्लाई डिक्रीज हुआ, देन द कर्व विल शिफ्ट टू दी लेफ्टवर्ड, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा एंड मेक अ S2, then equilibrium point is also shift from E to E2, right? equilibrium point आप देखिए OR से OR, इसको 2 ले लेते हैं क्योंकि 1 हमने उसमें लिया था, OR2 शिफ्ट हो गया एंड द क्वांटिटीज फ्रॉम लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गई, OM से OM to OM, ठीक है। सो
So these all are the reason for the depreciation of the domestic currency. First one is increase in the demand for the foreign exchange, and the second one is decrease in the supply of the foreign exchange. Okay, so you have to show all these things. आपको ये show करना पड़ेगा कि कर्व हमारा कैसे शिफ्ट हो रहा है. ठीक है, तो ये सारी चीजें बता के ही आपको क्या करना पड़ेगा, आगे इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा.